start with solving this problem. Lead code 1021, remove outmost parenthesis. So this problem is based on stack. So how we can solve it? uh, इसमें दे रखा है कि a valid parenthesis string is either empty, means we can say that the empty string can be a valid parenthesis, and if there is a open parenthesis, then there is a character a, and then there is a closed parenthesis. So or a plus b, where a and b are the valid parenthesis strings and plus represent string concatenations. So we can see that the valid parentheses are that which can occupy like that, means a plus b. So the b a plus b are also the valid parentheses and plus represent the string concatenation. I will explain it in a better way. So let's move further. Just like there is an example of valid parenthesis, empty string can also be a valid parenthesis, and this type of parentheses are also because one open and one close. This is a valid parenthesis, and this is also a valid parenthesis. Why? Because open, open, then close means every open and close having a closed, means there is nothing like open 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 only open. Okay, so every open parenthesis must be closed after any things can be in between this. So just like this example, we are open parenthesis, then open, then we have closed, means this one is complete now. After it, there is a open parenthesis, and close parenthesis, means this is complete now. And then closed means this is also completed. And after that, we know that these two are completed, and this one left. So this also can become complete. So that's why we call it a valid parenthesis. Okay, so now this is clear to all that what is valid parenthesis. It is just an example. Don't take it very deeply. It is also a valid example, just like a open parenthesis and close parenthesis. So it will make a valid parenthesis, just like this a plus b. This is also a valid parenthesis. Why? Because these are just like a big without parenthesis opening or closing. So it is also valid. Just like empty string is also a valid parenthesis. So we can say that this only, this also. So how the definition is also mentioned here. A valid parenthesis string s is primitive if it is non-empty. Means it is non-empty means if there is something. So we can say that a valid parenthesis string s is primitive. Okay, and there does not exist a way to split it into s equals to a plus b. With a and b are non-empty valid parentheses, so there is no way we can split out the non-empty things. Means just like there is an example given. Given a valid parenthesis s, consider its primitive decomposition is s equals to p1 plus p2 plus pvk. So pi are the primitive valid parenthesis string. So what we have to return, what we have to give the output, means there is a input and we have to check it. So what is output? Output is that return s. Okay, we have to return a string s. So after removing the outmost parenthesis of every primitive string in the primitive decomposition of s. What is the meaning of primitive decomposition? Primitive decomposition means just like the whole I will again repeat it. String s after removing the outermost parenthesis. हमको क्या करना है? outermost parenthesis को हटाना है. किसके? of every primitive string के. मतलब कि primitive string का मतलब जो अंदर का primitive string क्या है? एक ऐसी string है जो कि इन सब string से मिलके बनी है. अंदर के को हमने नहीं देखना है. अंदर के ऊपर का जो है उसको हमें देखना है. तो उस outermost को हमें क्या करना है? हटाना है. In the primitive decomposition. Why decomposition? This is the reason that primitive decomposition means s equals to p1 plus p2 plus this. We can take an example, so after that it will be clear to you. Easily you can handle it, just like open parenthesis, then open, then close. Okay, so it is clear. Okay, open, close, you know that this is clear. So the opening closes of this is the outermost parenthesis, so we have to delete it, and now we can take the inner parenthesis.
ओके, मतलब कि हमें जो पैरेंथेसिस दे रखे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इतने बड़े पैरेंथेसिस के उसमें से हमें पता है कि अंदर वाले जो दोनों हैं, उनके बाहर के क्या है, एक ये है और एक ये है। ये आउटर मोस्ट है तो इसके लिए हम हटा देंगे इनको, बाकी को ले लेंगे अंदर वालों को ले लिया तो ये अंदर वाले यहाँ आ गए। अब नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हमें एक मिल गया, ठीक है। एक और मिल गया, ठीक है। एक और मिल गया, ठीक है। एक और मिल गया, ठीक है। एकदम सही है। ये वैलिड है, बट हमें क्या करना है? इस प्रिमिटिव डिकम्पोजिशन के आउटर मोस्ट हटा रहे हैं। इसका आउटर मोस्ट कौन सा पैरेंथेसिस है? एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो इन दोनों को हटा देंगे, बचेगा क्या? अंदर वाला ये वाला। इसको हम लिख लेंगे, तो इसको एक मिनट, इसको लिखेंगे हम, सॉरी। हाँ, इसको लिखेंगे हम। कहाँ लिखा हमने? यहाँ लिख दिया। तो एक स्ट्रिंग बन गया। समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल? अब हम क्या करते हैं, ये एक बार देख लेते हैं, ये वाला एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है। द इनपुट स्ट्रिंग इज दिस विद प्रिमिटिव कंपोजिशन। प्रिमिटिव कंपोजिशन क्या है? एक तो ये है, ठीक है, और साथ में एक ये है। तो वही लिखा हुआ है इधर, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग आउटर पैरेंथेसिस ऑफ ईच पार्ट, अब इन सबके आउटर हटा रहे हैं। अब इसका आउटर हटाओगे तो ये बचेगा, इसका आउटर हटाओगे तो ये बचेगा, और तीन दोनों कंबाइन करोगे तो ये आ जाएगा। अब सिंपल समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रिमिटिव डिकम्पोजिशन एंड व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द आउटर मोस्ट पैरेंथेसिस एंड ऑल। Okay, now it's clear to all that what we have to do in this question. So right now we have take the second example. This is the second example, and what we are doing, we have to firstly dividing the that primitive decomposition means in this example, this is the one I thought, and this is the second one, and this is the third one. Okay, so we have to take it just like in this example, we have to remove the outermost. So if we remove the outermost, then it will become like that. Okay, if we remove the outermost, so then it will become like that. Okay, हमें पता है कि इसमें से भी अगर हम आउटरमोस्ट हटाते हैं ये वाला और ये वाला, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। ठीक है, आपने इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है, पता है ये है, ये है। क्या इसके अंदर, इसके बाहर कोई है? कोई नहीं है। इसका मतलब अंदर वाला कोई है? नहीं है। तो हम इसको पूरे को हटा देंगे। ठीक है, अब इस पे आए, इस पे भी यही खुद में आउटर मोस्ट है कि नहीं है ना? ये खुद में ही आउटर मोस्ट है ना? जब खुद में ही आउटर मोस्ट है, इसका मतलब इन्हीं को हटाना है हमें। जैसे कि इसमें था, इसमें ये खुद में आउटर मोस्ट था, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं अगर इनको, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब इनके आउटर मोस्ट हटाने हैं, तो आउटर मोस्ट ये हटेंगे, ये हट गए तो खाली खाली बचेगा, खाली और खाली। इन एम्प्टी को प्लस करेंगे तो एक एम्प्टी बन जाएगा, और यही हमें रिटर्न करना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्वेश्चन समझ में ये आ गया क्या कह रहा है, ठीक है? क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आप अगर करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Without understanding the question, and you will start solving the question and start writing the code, and that is not the best way to tackle any DSC problem. If you, मतलब अगर आप लाइफ में भी कभी भी कहीं भी DSC का इंटरव्यू कर दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अगर करते हैं, तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आप क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से। क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा, उसके पास एक मैसेज जाएगा कि ये छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है। जबकि हमें वही देखना चाह रहा है इंटरव्यूअर कि आप कितना चीज़ों को लेके सेंसिटिव है, कितना आप अच्छे से चीज़ों को नोटिस करते हैं, कैसे आप एज केस पकड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ नोटिस करने वाली होती है। आपको एग्ज़ाम्पल समझ में आ गया? अब आती है मेन चीज़ कंस्ट्रेंट। अगर आपने बिना कंस्ट्रेंट पढ़े ही करना शुरू कर दिया, आप इंटरव्यू में कर सकते हैं कि ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, देन आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, देन आप और ऑप्टिमाइज़ करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढंग से अच्छे देखते हैं। तो वो चीज़ ठीक है, बट यहाँ पे आप कर रहे हैं तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो आपका ये दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ है 10 की पावर 5। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रिंग के ऊपर लूप चलाते हैं, तो गारंटीड है कि 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 10 हो गया। जबकि हमारा कंपाइलर और इनकम्पाइलर कितना रहता है? 10 की पावर 8 रहता है। तो आउट ऑफ बाउंड पड़ जाएगा। इसका मतलब एन स्क्वायर में नहीं करना है, हमें उससे कम में ही करना है। अब हमने ये देखा कि जो ऐसा आई है उसमें केवल दो ही चीजें आएंगी, एक ओपन पैरेंथेसिस, एक क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। और एस क्या है? एक वैलिड स्ट्रिंग होगी, अब पता है हमें ये चीज, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमें पता है कि कभी भी वैलिड पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हमारे पास एक बोनस रहता है कि ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर स्टैक से सॉल्व होते हैं। तो हम सोच सकते हैं स्टैक के बारे में कि हाउ वी कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैक। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मैंने सोचा कि स्टैक से करूंगा, कैसे करूंगा? जैसे कि मैंने इसमें क्वेश्चन में देखा, मैंने क्या करा सबसे पहले कि ये प्रिमिटिव था और ये प्रिमिटिव था, उन दोनों को अलग किया और उनके आउटर मोस्ट हटाए, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट हटाए। एक चीज और देख सकते हैं
कि जैसे ही आपको पता चला कि मेरे पास ये है, एक मिल गया आपको, तो गारंटेड है कि इसके बाद वैलिड है। इसका मतलब इसके बाद के जितने भी आएँगे, जब तक ये पहला वाला क्लोज़ ना हो जाए, तब तक अंदर के क्या होंगे, सारे के सारे इनर वाले होंगे आउटर के। तो हम क्या करेंगे कि इसको नहीं लेंगे स्ट्रिंग के टाइम पर, अंदर वाले को लेते जाएँगे। कब तक लेते जाएँगे? जब तक हमें बाहर वाले का एक क्लोज़ ना मिल जाए। तो हमने इतना कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग ले लिया, फिर हमने स्टार्ट किया, फिर हमने एक ये ले लिया। जब हमें मालूम पड़ गया हमारे पास एक आ गया, मतलब एक आ गया हमारे पास, तो हमें गारंटीड है कि हमें जब तक क्लोज़ नहीं आ जाएगा, तब तक हमें चलना है और तब तक हमें सब डालते जाना है, इसके जितना भी आएगा तो डालते जाएँगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें भी दे सकते हैं। हमने क्या किया, एक डाल दिया पहले स्टैक के अंदर, ठीक? फिर उसके बाद हमने दूसरा डालने जाएँगे, डाल देंगे, स्टैक में डालेंगे, बट हमें पता है कि दूसरा वाला हमें स्ट्रिंग के अंदर भी लेना है। जो हम रिटर्न करा रहे हैं, उसमें भी लेना है, दूसरे वाले को। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि पहला वाला हम स्टैक में डाल दे रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर तो ऐड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले वाले को ले ही नहीं रहे हैं और दूसरे वाले से ही स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरे वाले से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग को लेना? क्योंकि पता है पहले वाले को हमें लेना नहीं है, क्योंकि उसको रिमूव करना है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा ये तीसरा आया क्लोज़ वाला, तो हमने स्टैक के अंदर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे क्योंकि कंप्लीट हो गया। फिर देखेंगे कि साइज़ बड़ा है 1 से, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबसे बाहर वाला आउटर है, वो अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ है। जब तक क्लोज़ नहीं होगा वो, तब तक हमें क्या करना है कि अंदर के जितने भी आते जा रहे हैं, सबको लेते जाना है हमें स्ट्रिंग के अंदर। अब ये आया, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर ले लो, ये आया, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर ले लिया। अब जैसे ही क्लोज़ आया, तो गारंटीड है, पता है कि इस स्टैक का साइज़ कितना होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्लोज़ नहीं मिला है। हमने जैसे ही हमने क्लोज़ मिला हमको, तो हम इस क्लोज़ वाले को भी नहीं लेंगे, किसके नहीं लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर नहीं लेंगे, बट स्टैक के अंदर लेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे। ठीक है? अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और दोबारा साइज़ 1 हो गया स्टैक का। फिर हमारा ये जैसे नेक्स्ट लेंगे, अब हमारा साइज़ बड़ा है 1 से, तो हम क्या करेंगे, अब इसके आगे वालों को लेते जाएँगे स्ट्रिंग के अंदर। तो आप समझ गए होंगे कैसे। एक बार कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हमें पता है कि ये एक कैरेक्टर से बोल सकते हैं। कैरेक्टर को हम ले रहे हैं, जिसका नाम हमने स्टैक लिख दिया, ठीक है? एसटी। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें एक व्हाइल लूप चलाना है, ठीक है? व्हाइल लूप चलाएँगे, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि इफ एक हम कैरेक्टर ले लेते हैं कैर नाम से, कैर ch, इसके अंदर क्या लेंगे, एस ऑफ आई ले लेंगे, जो भी करंट स्टैक के आई पे हो, और आई को लेने से पहले आई को डिक्लेयर करना पड़ेगा। साथ में हमें आई लेना, एंड एस एन ले लेते हैं, एस डॉट साइज, जिससे कि हमारे पास इसका साइज रहे। अब हम क्या कर सकते हैं कि जब तक आई इज लेस देन एन है, ठीक है, तब तक हम चलते जाएँगे। अब हमने कैरेक्टर ले लिया, अब हम उस कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर जो है, क्या वो मतलब खाली वाले स्टैक में आया है? अगर खाली वाले में आया है, तो हमें भी क्या करना है? नहीं, पहले हम चेक करेंगे कैरेक्टर के इक्वल इक्वल ओपन पैरेंथेसिस है। अगर ओपन है, ठीक है। अगर ओपन है, तो इसके अंदर हमें एक और वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्या जो स्टैक है, उसका जो साइज़ है, क्या वो बड़ा है 0 से? मतलब पहले से कुछ डला हुआ है। अगर पहले से डला हुआ है तो हम स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं यहाँ पर आंसर नाम की। ओके, सो वी हैव टू initialize a string, then in this question we have to add the answer plus equals to, what we have to add, we have to add the character, means what the character it is. ओके, ये हो गया। अगर ये नहीं है, मतलब कि ओपन वाला नहीं मिला, मुझे क्लोज वाला मिला, अब जैसे कि मान लो हमें एक क्लोज वाला मिला, तो हम चेक करेंगे कि अगर जैसे कि हमें ये वाला मैं देख रहा हूँ अभी, तो क्या पता ये वाला मिल रहा होता, क्या हमें इसको स्ट्रिंग में लेना है? हाँ, लेना है। कब लेना है? जब साइज बड़ा हो तब। मतलब कि इफ स्टैक का साइज क्या है, बड़ा है 0 से, तब हमें लेना है आंसर के अंदर। ठीक है? ओके। अब हमें स्टैक को देखना है कि स्टैक के अंदर डालना पड़ेगा कुछ चीजें, है ना? अब जैसे शुरुआत से एक बार ट्रेवर्स करते हैं। जैसे कि पहला पैरेंथेसिस आया, हमें स्ट्रिंग के अंदर नहीं चाहिए, बट स्टैक के अंदर चाहिए। तो साइज बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर ले लेंगे इसको, स्टैक डॉट पुश ch। ओके। और फिर दोबारा ये आया, हमने चेक किया, क्या ये है, ये बड़ा है, स्टैक का साइज 0 से, हाँ बड़ा है क्योंकि पहले डाल चुके हैं। तो हमने क्या किया, ये स्ट्रिंग के अंदर भी डाल लिया। फिर नीचे आया, फिर आई को चलाया, फिर देखा क्लोज वाला मिल गया, क्लोज वाला मिला हमें,
जैसे ही क्लोज वाला मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे, स्टैक डॉट पॉप। ओके, अब पॉप कर दिया हमने, इसको पॉप कर, किसको पॉप कर दिया, इसको पॉप कर दिया। ठीक है, इसको पॉप कर दिया, बचा क्या, केवल ये बचा होगा। और हमने चेक किया कि क्या इसका साइज बड़ा है, अगर बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो इस तरीके से होता चले जाएगा। ये मुझे लगता है कि सारा हो चुका है। आई को प्लस करते जाएंगे और लास्ट में आके रिटर्न कर देंगे किसको, और जब भी हमने आंसर लिखा था वो। एक बार रन करा के देखते हैं, कुछ एरर आएगा तो देखते हैं। चल गया है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। आप सबमिट भी हो गया, आसानी से हो गया सबमिट। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी है, बट द अप्रोच व्हाट विच आई एम यूजिंग इन इट इज डिफरेंट। आपको हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि मैं डिफरेंट अप्रोच को यूज कर रहा हूँ। डिफरेंट नहीं है, इजी है। जैसे कि मैं आपको एक बार रन करा के दिखाता हूँ, ट्राई रन करता हूँ। सिंपल इस एग्जांपल को लेते हैं। इसमें हमने क्या मालूम पड़ा कि हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ये वाली एक उठाई, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, बाहर वाले को निकाल देना है। तो मैंने बाहर का ये निकाल दिया, बाहर का ये निकाल दिया, बाकी अंदर का ले लिया। अंदर क्या है, अंदर कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है। तो हम एम्प्टी ले लेंगे, ठीक है इससे। फिर आगे बढ़े, फिर हमने देखा है क्या है इसमें, आउटर वाले हटा दिए, अंदर वाले ले लिए, अंदर वाले ले लिए, उसको जोड़ दिया तो एम्प्टी बनेगा, जिसका आंसर एम्प्टी आ गया। और उसको चलाएंगे कैसे, जैसे कि इस लूप के अंदर आ रहे हैं हम। तो हमने पहले क्या किया कि अ, एक स्टैक बनाया। क्यों स्टैक बनाया, क्योंकि स्टैक से हमें क्या रहता है, पैरेंथेसिस का इजी रहता है कि ओपन मिला या क्लोज मिला। अगर हमें दोनों पेयर मिल गए तो हटा देंगे अंदर वालों को, जैसे कि इसके अंदर थे। हमें स्टैक ओपन और क्लोज मिल गया तो हमें कोई जरूरत है इनकी, कोई फायदा ही नहीं है इनका। खाली स्ट्रिंग के अंदर ले लेंगे, बाकी तो स्टैक के अंदर से पॉप कर देंगे ना, दोनों को हटा देंगे तो हट जाएगा। इसलिए थोड़ा सही रहता है स्टैक यूज करना, इसलिए स्टैक यूज कर रहा हूँ मैं। साइज निकाल लिया, एक आंसर नाम का एक स्ट्रिंग ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि हर बार पहले सब पे जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो कैरेक्टर क्या है। अगर कैरेक्टर हमारा क्या है, ओपन है, तो हमें क्या करना है कि ओपन है तो मतलब ये गारंटेड है कि कुछ ऐसा एक प्रिमिटिव मिलने वाला है मुझे। पर हो सकता है कि वो बाहर का हो, गारंटेड है बाहर की होगा। कब बाहर का होगा, जब स्टैक में अभी तक कुछ डला ना हो। स्टैक के अंदर कुछ डला नहीं हुआ है, मतलब ये क्या है, स्टैक के अंदर कुछ डला हुआ है, अगर कुछ डला नहीं हुआ तो हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, पर आंसर के अंदर पुश नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें बाहर वाला चाहिए ही नहीं उसमें आंसर में, उसको हटाना है ना, तो उसको मैंने लिया ही नहीं। फिर आगे बढ़े, जैसे कि इस पे ये आया तो हमने इसको ले लिया स्टैक, स्टैक के अंदर, बट उसके आंसर के अंदर नहीं लिया। अब फिर जैसे क्लोज वाला आया, जैसे ही क्लोज वाला आया, इस वाली कंडीशन में आ गए। हमने स्टैक डॉट पॉप कर दिया, पॉप मतलब कि पहला वाला भी चला गया, स्टैक खाली हो गया। देखा स्टैक क्या बड़ा है, नहीं है। तो स्टैक बड़ा नहीं है तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ गया, आई प्लस हो गया, मतलब आंसर अभी आंसर के अंदर कुछ आया ही नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर दोबारा ओपन आया, फिर दोबारा ओपन आया, फिर वही कंडीशन लगेगी सेम, और फिर दोबारा एम्प्टी हो जाएगा, फिर दोनों एम्प्टी एम्प्टी पूरा एम्प्टी रह जाएगा, यहाँ तक पूरा लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ आंसर रिटर्न हो जाएगा। आंसर क्या रह जाएगा, आंसर वही कभी रह जाएगा, एम्प्टी। समझे। तो ये सिंपल टेस्ट के समझ गए होगे तुम क्या कर रहा हूँ। ये भी अगर तुम सिंपल समझ गए हो ना, तो ये सब समझ में आएगी, यही समझा चुका हूँ तुम्हें मैं, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा फ्यूचर में। ओके, सोच रहा हूँ आज से रेगुलरली डालूं। ओके, सो थैंक यू। आप बता सकते हैं मेरे को, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँ या हिंदी में पढ़ाऊँ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में प्रेफर कर सकता हूँ। और आपको किसी और लैंग्वेज में चाहिए बता सकते हैं, जैसे मैं सी प्लस प्लस प्रेफर करता हूँ कि सी प्लस प्लस मैं थोड़ा प्रोफिशिएंट हूँ, मतलब सी प्लस प्लस ही यूज़ करता हूँ मैं कोडिंग के लिए, तो इसलिए मैंने उसमें बताया। अगर आपको और भी लैंग्वेज में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं मेरे को। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।